PSSB ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ। A to Z ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਲੱਸ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾਗਾ 101% ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਨਿਸ ਹੈਗਾ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਾਕੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਪੜਾਂਗੇ। A to Z ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟੈਨਿਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੋ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? 4 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ? ਸਪੇਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜੇਤੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ? 22 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ, ਹੁਣ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਐਗਾ ਸਵੈਟਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ? ਪੋਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ? ਰੋਨਾਲਡ ਗੈਰੋਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਲੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਈ ਟੂ ਜੂਨ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ? ਮਈ ਟੂ ਜੂਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ 2022 ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ 3 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜੇਤੂ ਨੇਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੋਰਟ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਲੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਹੈ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਐਸ਼ਲੇ ਬਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਸ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਨੇ 2 ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ, US ਓਪਨ 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਚਾਰਲਸ ਅਲਕਾਰਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ? ਚਾਰਲਸ ਅਲਕਾਰਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਵਾਂ? 142ਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। US ਓਪਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ US ਓਪਨ ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਨਸ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਚਾਰਲਸ ਅਲਕਾਰਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਐਗਾ ਸਵੈਟਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਗਾ ਸਵੈਟਿਕ ਨੇ ਵੀ 2 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 2022 ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ US ਓਪਨ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੋਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ ਟੈਨਿਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਟੋਟਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਕੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ? ਲੇਬਰ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਤਾ? 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 5 देखो 2022 विंबलडन चैंपीयनशिप विच मैंस सिंगल का खिताब किसने जितया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है जी। ये भी की अपना एक ग्रैंड स्लैम है, ये अपना चौथा ग्रैंड स्लैम हो गया, ठीक है। याद करो हम टोटल अपने 4 पूरे हो गए। सो ये किसने जितया, नोवाक जोकोविच ने। किसने जितया, नोवाक जोकोविच ने, ठीक है जी। तो बाकी जो विंबलडन चैंपीयनशिप होंगी हैगी, ये कोर्ट टाइप की होंगी हैगी, ग्रास, ठीक है जी। ये किहड़े कोर्ट टाइप पर खेडिया जाता, ग्रास कोर्ट टाइप पर खेडिया जाता, ठीक है जी। ग्रास कोर्ट पर खेडिया जाता, मतलब घाह नाल बने कोर्ट पर, ठीक है जी, घाह नाल बने ग्राउंड उपर। एडिशन कितना सी 135वां। जी नोवाक जोकोविच की कंट्री जो किहड़ी हैगी, सर्बिया कंट्री है, ठीक है जी। हुण मैंस सिंगल का किसने जितया, नोवाक जोकोविच ने। वूमन सिंगल का खिताब किसने जितया, एलेना रबकिना। एशिया की पहली महिला, ठीक है जी, करके नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलेना रबकिना एशिया की पहली महिला बनी है जिन्हें विंबलडन चैंपीयनशिप जीती है, ठीक है जी। याद कर लो किहड़ा देश है इन्हां दा, कजाकिस्तान। किहड़े देश तो ने ये, कजाकिस्तान देश तो ने, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है जी। जिन्होंने वीडियो तेज़ लग रही हैगी वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इस तरह का कंटेंट तुहानूं किसी पेड ग्रुप में भी नहीं मिलना। हाँ जी, प्रश्न नंबर 6 देखो वाइटमैन कप 2023 में शुरू होया सी, ये किस खेड नाल संबंधित है। तो देखो जी आप टैनिस बारे पढ़ रहे हैं, किस नाल संबंधित है, टैनिस नाल ही संबंधित है, ठीक है जी। हुण आप टैनिस देखो जी इंपॉर्टेंट कप देख रहे हैं। टैनिस के इंपॉर्टेंट कप देखो ATP प्रेसिडेंट कप, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैनिस संबंधित है। डेविस कप याद रख लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप, ठीक है जी। ग्रैंड स्लैम मैं तुहानूं दसता भी साल में किन्ने होंगे, 4 होंगे, किहड़े होंगे आप डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है जी। किन्ने जितने भी पढ़ लिया। मैड्रिड ओपन हो गया, ठीक है जी, मियामी ओपन हो गया। ये कुछ नहीं, वैसे तो 50 तो लैके 100-150 भी कप होंगे, पर आप सिर्फ उही पढ़ने हैं जो पहला पेपर में आए हुए हैं या पेपर में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो सारिਆਂ ਨੂੰ की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 7 देखो चार्ल्स अल्काराज हाल ही ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ATP 500 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਰਲਸ ਅਲਕਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ US ਓਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ US ਓਪਨ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਸਪੇਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ATP ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ATP ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ATP ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ATP ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न 8 देखो हाल ही में ग्रैंड स्लैम 80 मैच जितने वाले दुनिया के पहले खिडारी कौन बने हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो जी ग्रैंड स्लैम किन्ने होंगे, 4 होंगे, ठीक है, जिवें तुहानूं दस्सिया सीगा। हुण हाल ही में शुरू तो लैके अपने करियर तो लैके टोटल 80 मैच जितने वाले किहड़े खिडारी बने हैं, नोवाक जोकोविच बनया, ठीक है जी। कौन बने हैं, नोवाक जोकोविच बनया। किहड़ी कंट्री तो ने, सर्बिया कंट्री तो ने, ठीक है जी। किहड़ी कंट्री तो ने, सर्बिया कंट्री तो ने। सारी गल्लां नूं की कर नोट कर लेना। टैनिस दे आपां करंट अफेयर पढ़ ले, बाकी जिहड़ी टर्मोलॉजी रह गई, जिहड़े इंपॉर्टेंट कप्स रह गए, ठीक है जी, अवार्ड रह गए, आपां वीडियो ते अगे जाके पढ़ांगे। इत्थे तक करंट अफेयर सारे नोट करो। हुण आपां अगे पढ़ांगे क्रिकेट बारे, ठीक है जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9 देखो ICC वूमन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता किहड़ी टीम रही। हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो जी ICC वूमन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में होया, ठीक है जी। जो मैंस का वो कदों होगा, 2023 में होगा, ठीक है जी। तो होगा कितने, इंडिया में ही होगा, कितने होगा, इंडिया में होगा, ठीक है जी। सो वूमन क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता किहड़ी टीम रही हैगी, आस्ट्रेलिया रही हैगी। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। होया कितने सीगा, न्यूजीलैंड में होया सीगा। आस्ट्रेलिया ने हराया किनू, दूजे नंबर पर कौन रहा, इंग्लैंड रहा, ठीक है जी। कौन रहा, इंग्लैंड रहा, ठीक है जी। बाकी याद रखियो एलिसा हेले, ये कौन आ, आस्ट्रेलिया के खिडारी है, ठीक है जी। तो दुनिया की पहली खिडारी बनी हैगी वर्ल्ड कप के फाइनल में सब तो ज़्यादा रन बनाने वाली, ठीक है जी। दुनिया की पहली खिडारी बनी हैगी वर्ल्ड कप के फाइनल में सब तो ज़्यादा रन बनाने वाली, ठीक है जी। भावें मैंस की गल करिए, भावें वूमेंस की गल करिए, दुनिया की पहली खिडारी बनी है, ठीक है जी। नाम याद रख लो, एलिसा हेले, ठीक है जी। बाकी याद रखो ICC वर्ल्ड कप 2025 जो वूमेन का वर्ल्ड कप होगा ICC 2025 को कितने होगा, इंडिया में होगा, ठीक है। याद रखियो किन्नवां एडिशन होया, जो होयागा ये 12वां एडिशन होया, ठीक है जी। याद रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं गी, सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10 देखो किहड़ी टीम 1000 वनडे मैच खेडण वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन किहड़ी टीम बनी हैगी, इंडिया टीम बनी है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर B में बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो बाकी याद रखो इंडिया के मौजूदा कप्तान कौन ने, रोहित शर्मा ने, कौन ने, रोहित शर्मा ने, ठीक है जी। तो बाकी 1000वां वनडे मैच है जो किहदे खिलाफ खेडिया सीगा, वैस्ट इंडीज के खिलाफ खेडिया, ठीक है जी। किहड़े स्टेडियम में, मोटेरा स्टेडियम में, ठीक है जी। इनू नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं, ठीक है जी। की कहते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं, कित्थे हैगा, अहमदाबाद गुजरात में हैगा। बाकी याद रखो जी इंडिया की मौजूदा वनडे रैंकिंग हैगी किहड़े नंबर पर, तीजे नंबर पर, ठीक है जी। इंडिया वनडे रैंकिंग किहड़े नंबर पर हैगी, तीजे नंबर पर हैगी। सारियां गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है जी। इस तो बाद तुहानूं कोई भी प्रश्न देखने नहीं मिलने वाला।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 11 देखो T20 एशिया कप 2022 कित्थे होया। तो देखो जी कप कित्थे होना सी, श्रीलंका विच होना, ठीक है जी। पर जिवें तुहानूं पता होणागा भी श्रीलंका विच की चल रिहा गा, इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रिहा गा, सो उहदी थां ते कित्थे होया सीगा, यूएई विच होया सीगा। कित्थे होया सीगा, यूएई विच होया, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी अपन बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, सारिਆਂ ने नोट कर लेना गा। बाकी दा विजेता कौन रहा, श्रीलंका ही रहा। कौन रहा, श्रीलंका रहा। श्रीलंका ने हराया किनू हैगा, पाकिस्तान नूं हराया, ठीक है जी। रनर अप पाकिस्तान रहा। एडिशन किनवां सीगा, 15वां सीगा। बाकी याद रखो मैन ऑफ द टूरनामेंट कौन रहा, वाइनाइडू हसरंगा। कौन रहा, वाइनाइडू हसरंगा, ठीक है जी। 15वां होया सीगा। हुण 16वां कित्थे होऊगा, 16वां होऊगा पाकिस्तान विच, ठीक है जी। 16वां कित्थे होऊगा कप, पाकिस्तान विच होऊगा या नहीं टाइम ही दसूगा, ठीक है जी। बस निर्धारित भी 16वां पाकिस्तान विच होऊगा। ये सारी गल्लां नूं की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 12 देखो किहड़ी खिडारी महिला क्रिकेट विच इतिहास रचते हुए ओडीआई विच 250 विकेट लैण वाली दुनिया की पहली खिडारी बनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैगा, किहड़ी बनी हैगी, जूलन गोस्वामी बनी है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो याद रखो हाल ही इन्होंने की ले लिया, क्रिकेट तो संन्यास भी ले लिया। 48 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट तो संन्यास लिया, ठीक है जी। 250 जो विकेट से किहदे खिलाफ लेता, इंग्लैंड के खिलाफ लेता, ठीक है जी। प्रश्न आ जाए आखिरी जो मैच है वो किहदे खिलाफ खेडिया, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ ही खेडिया, ठीक है जी। टोटल किन्ने वर्ल्ड कप खेडे गए, टोटल 6 वर्ल्ड कप खेडे गए। सारी गल्लां की कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 13 देखो मेंस आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 किस कंट्री ने जितया। हाँ जी, इतने अपना राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊ, ठीक है जी। इंडिया ने जितया, हराया किनू, इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, ठीक है जी। याद रखियो किन्नवां एडिशन सीगा, 14वां एडिशन सीगा। होया कित्थे सीगा, वेस्ट इंडीज़ विच होया सी, ठीक है जी। तो इंडिया दे विच कप्तान कौन सीगा, पुछ लेंदे हुंदे, याद रख लियो यश धूल। कौन सीगे, यश धूल सी, ठीक है जी। तो इंडिया का यह 5वां टाइटल है, इंडिया का किन्नवां टाइटल है, 5वां टाइटल है आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप का, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 14 देखो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम जितया। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैगा। इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा के रणजी ट्रॉफी का खिताब जितया, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, पहली बार जितया, ठीक है जी। रनर अप कौन रहा, मुंबई रहेगा। 87वां एडिशन सीगा। रणजी ट्रॉफी शुरू कदों हुई सी, 1934 तो, ठीक है जी। सब तो ज़्यादा बार कौन जितया होगा, मुंबई जितया होया, ठीक है जी। तो मैन ऑफ द टूरनामेंट कौन सी, सरफराज खान सीगा। मैन ऑफ द मैच कौन सीगा, शुभम शर्मा, ठीक है जी। सारी गल्लां नोट कर लेना गा। बाकी याद रखियो जो रणजी ट्रॉफी का नाम आगा, टाइटल आ ये किहदे नाम से पिया होगा, रणजीत सिंह जी। किहदे नाम से, रणजीत सिंह जी के नाम से, ठीक है जी। ये कौन सीगे, भारत के पहले इंटरनेशनल खेडण वाले क्रिकेट खिडारी, भारत के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेडण वाले पहले खिडारी बने, ठीक है जी। सो इन्होंने नाम से किहड़ी ट्रॉफी का नाम पै गया, रणजी ट्रॉफी का नाम पै गया, ठीक है जी। नोट करो। बाकी प्रश्न आ सकता गा रणजी ट्रॉफी नूं किहड़े महाराजा ने डोनेट किया सीगा, किहड़े महाराजा ने किया सीगा, भुपिंदर सिंह ने, ठीक है जी। महाराजा पटियाला ने, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 15 देखो खबर अनुसार बीसीसीआई वूमन आईपीएल किस साल में लॉन्च करने सोच रहा। तो देखो जी सोच रहा नहीं, ये तय हो गया, ठीक है जी। 2023 तो की होया करूगा, वूमन आईपीएल शुरू होगा, ठीक है जी। 2023 तो वूमन आईपीएल शुरू होगा। हुण याद रखो जो बीसीसीआई है मास्टर कार्ड वो घरेलू मैच का की बन गया, स्पॉन्सर बन गया, ठीक है जी। मतलब जिन्ने भी बीसीसीआई के मैच इंडिया में होंगे उन्हें स्पॉन्सर मास्टर कार्ड होगा ही होगा, ठीक है जी। इन्होंने विचकार की हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाकी याद रखो हाल ही प्रेजिडेंट कौन बने गए बीसीसीआई के नवे, रोजर बिन्नी, ये भारत के पूर्व खिडारी ने, ठीक है जी। ये बने गए। बाकी सैकटरी अमित शाह के लाडले जय साहब बनया, ठीक है जी। फॉर्मेट कदों चालू स्थापना कदों हुई सी, 1928, ठीक है जी। हैडक्वार्टर कित्थे हैगा, मुंबई विच आ। सारी एक बार होर देखो जो वूमन आईपीएल 2023 तो शुरू होगा, ठीक है जी। तो बीसीसीआई ने किहदे नाल कॉन्ट्रैक्ट किया स्पॉन्सरशिप का, घरेलू मैचों लिए मास्टर कार्ड ना, ठीक है। याद रखियो। तो हाल ही प्रेजिडेंट कौन बने गए, रोजर बिनी बने गए। सैकटरी अमित शाह के लाडले जय साहब बनया, ठीक है जी। स्थापना कदों हुई सी बीसीसीआई की, 1928 हुई सी, ठीक है जी। तो बीसीसीआई का हैडक्वार्टर कित्थे हैगा, मुंबई विच आ, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 16 देखो हाल ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी मिथाली राज ने अपने खेड जीवन तो संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने कुल किन्ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न आगा। तो देखो जी दो व्यक्ति नाम याद रखने गए, मिथाली राज तो जूलन गोस्वामी, ठीक है जी। महिला क्रिकेट में दोनों ने की ले लिया, संन्यास ले लिया गया। तो मिथाली राज ने टोटल 6 वर्ल्ड कप खेडे थे। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो पहली महिला सी 10,000 रन बनाने वाली, ठीक है जी। पहली महिला बनी सी 10,000 रन बनाने वाली। तो इन्होंने अर्जुन अवार्ड कदों मिला, 2003 मिला। मेजर ध्यानचंद अवार्ड कदों मिला, 2021 मिला। तो याद रखो इन्होंने 2015 पद्म श्री भी मिला, 2015 इन्होंने पद्म श्री भी मिला, ठीक है जी। सारी गल्लां की कर लेना, नोट कर लेना। एक गल हो याद रखो, दो तो ज़्यादा वर्ल्ड कप कप्तानी करने वाली दुनिया की दूसरी महिला भी, ठीक है जी। मिथाली राज 2 तो ज़्यादा वर्ल्ड कप कप्तानी करने वाली दुनिया की दूसरी महिला भी हैगी है, ठीक है जी। पहली महिला आस्ट्रेलिया की है, मैनू नाम याद नहीं आ रहा, बस इन्नी याद रखो भी 2 तो ज़्यादा कप्तानी करने वाली 2000 वर्ल्ड कप कप्तानी करने वाली मिथाली राज दुनिया की दूसरी महिला, ठीक है जी। सारी गल्लां कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 17 देखो, विजन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਣ ਵਿਜਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਗੇ, ਜॉय रूट। ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਗੇ, जॉय रूट ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न 18 देखो, 2022 ਵਿੱਚ IPL ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ IPL ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 15ਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਟਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੋ ਇਹ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਪਲੇਅਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਆਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰਜਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਖਾਸੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 19 देखो, IPL 2022 का खिताब किहड़ी टीम जित्तिया। तो देखो जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब पता भी होना चाहिए गा। किने जित्तिया, गुजरात टाइटंस ने जित्तिया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। ये कप्तान कौन सीगे, हार्दिक पांड्या सीगे। हराया किनू, राजस्थान रॉयल हराया। ठीक है जी, ये कप्तान कौन सीगे, संजू सैमसन। कौन सीगे, संजू सैमसन सी। ठीक है, नोट करो। फाइनल मैच होया कित्थे सीगा, मोटेरा स्टेडियम में, जिन्होंने की कहते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। ठीक है जी, कित्थे हैगा, अहमदाबाद गुजरात विखे हैगा। तो दुनिया का सब तो बड़ा स्टेडियम किहड़ा हैगा, मोटेरा स्टेडियम हैगा क्रिकेट का। ठीक है जी, नोट करो। मैन ऑफ द मैच कौन रहा, हार्दिक पांड्या रहा। ठीक है जी, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, हार्दिक पांड्या रहा। तो IPL की शुरुआत कदों हुई सी, 2008 तो हुई सी। पहला टाइटल किसने जित्तिया सीगा, राजस्थान रॉयल ने जित्तिया सीगा। राजस्थान रॉयल के कप्तान उस वक्त कौन सीगे, शेन बॉर्न सीगे। कौन सीगे, शेन बॉर्न सी। ठीक है जी, तो हाल ही में शेन बॉर्न का की हो गया, निधन हो गया। ठीक है जी, हाल ही में 2022 में शेन बॉर्न का की हो गया, निधन हो गया। हुण सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 20 देखो, IPL 2022 में किहड़ियां दो नवीं टीमां ने हिस्सा लिया। तो देखो जी लखनऊ सुपर जायंट ते गुजरात टाइटंस। ठीक है जी, ये दो नवीं टीमां सीगियां। खिताब किहने जित्तिया, गुजरात टाइटंस जित्तिया। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, लखनऊ सुपर जायंट ते गुजरात टाइटंस। ठीक है जी, तो याद रखियो सब तो ज़्यादा IPL के खिताब जितने वाली टीम किहड़ी हैगी, मुंबई इंडियन। ठीक है जी, किन्ने जित्ते होए बई, 5 जित्ते होए। किन्ने जित्ते होएगे, 5 जित्ते होएगे। तो टोटल टीमां किन्नियां सीगियां, टोटल टीमां किन्नियां सी 2022 में 10 टीमां। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 21 देखो, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करूगा। तो देखो जी स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडिया करूगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो सैकंड एडिशन होगा। ठीक है जी, एक केड़ा एडिशन होगा, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप का सैकंड एडिशन होगा। ठीक है जी, कौन मेजबानी करूगा, इंडिया करूगा। एम की है, सेव द चिल्ड्रन। ठीक है जी, चिल्ड्रन चंगे रास्ते से लेके जाना, सेहत पक्षों उन्होंने विकास करना। ठीक है जी, ये है, एम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 22 देखो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू मैच में 13 सत्ते लगाने वाले पहले व्यक्ति किहड़े बने हैं। तो देखो जी फर्स्ट क्लास मतलब घरेलू क्रिकेट में। ठीक है जी, सो किहड़े बने नेगे, शकीबुल गनी बने। ठीक है जी, ये बिहार तो नेगे, कितों नेगे, बिहार तो नेगे। बिहार ते मिजोरम का मैच चल रहा सी रणजी ट्रॉफी का। ठीक है जी, वो इन्होंने की किया, 13 शतक लगाया, मतलब 300 रन बनाया। ठीक है जी, दुनिया के पहले व्यक्ति बने नेगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300 रन बनाने वाले। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। सारे जाने की कर लेना, नोट कर लेना। तो किहड़े स्टेट तो ने पूछ सकते हैं, ये बिहार स्टेट तो ने। ठीक है जी, किहड़े स्टेट तो ने, बिहार स्टेट तो ने। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 23 देखो, वेयर विल द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डीप T20 क्रिकेट चैंपीयनशिप इन 2023 बी हल्ड। तो देखो जी जिन्होंने लोगों को सुनता नहीं, ठीक है, डीप मतलब उन्होंने पहली T20 क्रिकेट चैंपीयनशिप होनी है 2023 कितने होनी है, केरला विखे। ठीक है जी, हम जो देश के नाम लिखो तो कितने होनी है, ओबवियसली इंडिया में होनी है। ठीक है जी, स्टेट के नाम लिखो कितने होनी है, केरला विखे होनी है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जितने भी शब्द आ जाए भी पहला कितने होना गा, वो अपना जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट बन जाता। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। बाकी जिन्होंने विद्यार्थियों को हाले भी तेज लग रहा, वीडियो तेज आ गई, वो की कारण वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 24 देखो, मोहम्मद हफीज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो संन्यास लिया है, वो किहड़े देश नाल संबंध रखते हैं। तो देखो जी मोहम्मद हफीज किहड़े देश तो हैं, पाकिस्तान देश तो हैं। ठीक है जी, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। बाकी याद रखो रॉस टेलर ये किहड़े देश तो ने, ये न्यूजीलैंड तो ने, इन्होंने भी हाल ही संन्यास लिया। ठीक है जी, कैरन पुलाड़, कौन, कैरन पुलाड़। ठीक है जी, ये किहड़े देश तो ने, ये है वेस्ट इंडीज़ तो। ठीक है जी, इन्होंने भी हाल ही संन्यास ले लिया। इयान मॉर्गन
ਇਆਨ ਮੋਰਗਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਰਮ ਪਲਾਟ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਆਨ ਮੋਰਗਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੇਖੋ, T20 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਸਟ 10,000 ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, T20 ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। T20 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, IPL ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, IPL ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 10,000 ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਰ ਬਈ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 26 ਦੇਖੋ, ਰੌਸ ਟੇਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੇਖੋ, IPL ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਗ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਖੇਡੂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਖੇਡੂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਗੇ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਵੀ ਚੰਦਰ ਆਸਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਜ਼ਾ ਸਟਾਲੇਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਜ਼ਾ ਸਟਾਲੇਕਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੇਖੋ, ICC ਮੈਨ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2024 ਹੋਸਟਡ ਬਾਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 24 ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 2024 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇਖੋ, ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਟੂ ਬੀ ਹੈਂਡਡ ਅ 4-year ਬੈਨ ਆਫਟਰ ਫੇਲਿੰਗ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਰਾਏ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ D ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਵਾਜ ਦਾ ਫਸਟ ICC ODI ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ICC ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1975 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। 2023 ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। 2023 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ICC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 1909 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, UAE ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇਗੇ, ਬਾਰਕਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ICC ਦਾ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1975 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2023 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ICC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, 1909 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, UAE ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇਗੇ, ਜਾਰਜ ਬਾਰਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32 ਦੇਖੋ, ਦ ਟਰਮ ਬੀਮਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਗੇਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਮਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਪਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਲਵੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਟੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਮਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਬੀਮਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਬਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ D ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੀਮਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਰੀਕਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਪਤੌਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੇਖੋ, ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ 2022 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੇਖੋ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੇਨ ਬੌਨ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 2 ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਨ ਬੌਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੌਣ, ਐਂਡਰੂ ਸੈਮਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਨ ਬੌਨ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੂ ਸਾਈਮਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ A ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।
हाँ जी प्रश्न 37 देखो, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI पुस्तक किन्ना द्वारा लिखी गई है। हाँ जी ये पुस्तक किने लिखी हैगी, ये लिखी हैगी विनोद राय ने। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 37 देखो, ICC ने किसनों अपने सब तो बड़े सन्मान ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। तो देखो जो सन्मान हैगा क्यों दिता जाता हैगा, क्रिकेट में खेड भावना दिखाने ਲਈ। ठीक है जी, क्रिकेट में खेड भावना दिखाने ਲਈ। सो किस दिता है, डेरल मिशेल ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। किस ਨੂੰ, डेरल मिशेल ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। ICC ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार किस ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, डेरल मिशेल ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। क्यों ਦਿੱਤਾ है, क्रिकेट में खेड भावना दिखाने ਲਈ। ठीक है जी, सारियां गल्लां ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 38 देखो, रानी कप हेठ लिखियां विचों किस खेड नाल संबंधित आ। सो आप किस बारे पढ़ रहे हैं, क्रिकेट बारे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ऑब्वियसली किस नाल संबंधित है, क्रिकेट नाल ही संबंधित आ। ऑप्शन नंबर अपना बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। हुण आप किस क्रिकेट देखो जी इंपॉर्टेंट कप्स देख लैंदे हैगे ते ट्रॉफियां। CK नायडू ट्रॉफी, ठीक है जी, क्रिकेट नाल संबंधित आ गई। दियोदर ट्रॉफी होगी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी होगी, GD विला ट्रॉफी होगी, ठीक है जी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ठीक है जी, तो विजय हजारा ट्रॉफी। इन्होंने बारे प्रश्न पहला भी पेपर में आए हुए, इस करके इतने लिखे ने। ठीक है जी, बाकी जो आप कप बारे पढ़ भी चुके हैं, जो ट्रॉफियों बारे आप पढ़ भी चुके हैं, वो तो थोड़े याद होनी ने। ठीक है जी, बाकी ये भी याद कर लेना। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने बारे प्रश्न पहला भी पेपर में पूछे गए। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 39 देखो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सब तो ज़्यादा विकेट लैण वाले तेज़ गेंदबाज कौन बने हैं। हाँ जी इंपॉर्टेंट प्रश्न आगा, तेज़ गेंदबाज कौन बने ने, जेम्स एंडरसन बने। ठीक है जी, किहड़े देश के खिडारी ने, इंग्लैंड देश के खिडारी ने, किहड़े देश के, इंग्लैंड के। ठीक है जी, बाकी याद रखो तेज़ गेंदबाज पुछ लैण कौन, जेम्स एंडरसन। ठीक है जी, केवल इन्ना ही पुछ लैण भी गेंदबाज कौन बने, गेंदबाज कौन ने सब तो ज़्यादा विकेट लैण वाले, वो कौन ने, मुरलीधरन। कौन ने, मुरलीधरन। ये किहड़ी कंट्री तो ने, ये है श्रीलंका तो। किहड़ी कंट्री तो ने, श्रीलंका तो। ठीक है जी, तो देखो तेज़ गेंदबाज पुछ लैण कौन बने ने, जेम्स एंडरसन बने। ठीक है जी, केवल इन्ना ही पुछण भी तेज़ गेंद सब तो ज़्यादा विकेट लैण वाले गेंदबाज किहड़े ने, मुरलीधरन। ठीक है जी, ये स्पिनर सीगे। सो अपना इत्थे राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर अपना ए आ जाऊ। ठीक है जी, सारे ने की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 40 देखो, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट एस्टैब्लिशमेंट गेन यूनिकॉर्न स्टेट। तो पूछ रहे भारत में किहड़ी स्पोर्ट की, ठीक है जी, खेड के खेत्र में किहड़ी अजिही पहली कंपनी हैगी जिन्हें यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त किया। यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन की कंपनी बनी है। ठीक है, यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन की कंपनी बनी है। ठीक है जी, किहड़ी बनी हैगी, चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर सी अपन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न आगा, पहला भी पेपर में सेंटर के देखा मैं। ठीक है जी, इस करके नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 41 देखो, पूर्व भारतीय खिडारी सुरेश रैना ਨੂੰ हाल ही में किस देश द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिता गया। तो देखो जी ये मालदीव ने दिता। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। सुरेश रैना ਨੂੰ, ठीक है जी, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किहड़े देश ने दिता हैगा, मालदीव की सरकार ने दिता। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 42 देखो, बनाना, चाइनामैन, डोजरा एंड गुगली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो देखो ये सारियां टर्म ने किहड़ी खेड नाल संबंधित ने, क्रिकेट नाल संबंधित ने। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। बाकी डेक वर्थ लूज रोल ये की है, हुण मान लो एक टीम ने खेड हटी। ठीक है जी, एक टीम ने रन बना ले, दूसरी टीम खेल रही हैगी, अद्ध विचाले की है, मीह आ गया। ठीक है जी, हुण दूसरी टीम मीह तो बाद किन्ने रन बनाऊगी। ठीक है, किन्ना टारगेट मिलूगा, किन्ने रन रेट, सारे कुछ का हिसाब ला के उन्होंने की कहते हैं, डक वर्थ लूज रोल कहते हैं। ठीक है जी, किन्ने रन बनाने पैणगे, उन्होंने किन्ने ओवरां विच सारा कुछ हिसाब ला के उन्होंने की कहते हैं, डक वर्थ लूज रूल कहते हैं। ठीक है जी, इस रूल के तहत ही वो की उन्होंने मिलूगा, टारगेट मिलूगा। ठीक है जी, ये भी नोट करो, प्रश्न आया हुआ है पहला पेपर में। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, हुण आपां पढ़ांगे बैडमिंटन बारे। ठीक है जी, हाँ जी प्रश्न नंबर 43 देखो, स्विस ओपन 2022 वूमन सिंगल का खिताब किसने जितया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने जितया, PV सिंधु ने जितया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। PV सिंधु ने वूमन सिंगल का खिताब जितया। सो मेंस सिंगल का खिताब किसने जितया, जोनाथन क्रिस्ट ने। यह नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हराया किनू, SS प्रणय ने हराया। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर कौन रहा है, इंडिया के SS प्रणय रहा। ठीक है, नोट करो, होया कितने जे स्विट्जरलैंड में चॉइस। ठीक है जी, सिंधु ने तुम्हें पता है भी रियो ओलंपिक 2016 में किहड़ा मैडल जितया सीगा, सिल्वर मैडल जितया। ठीक है जी, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किहड़ा मैडल जितया सीगा, ब्रॉन्ज मैडल जितया। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 44 देखो, थॉमस कप 2022 किस देश ने जितया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने जितया, इतिहास में पहली बार इंडिया ने जितया। ठीक है जी, किसने जितया, इंडिया ने जितया। एक पुरुषों का कप होंगे। ठीक है जी, केवल पुरुषों का कप होंगे। पुरुषों का कप किहड़ा होंदा, थॉमस कप होंदा, तो महिलावां का इहदे उल्ट कप किहड़ा होंदा, उबर कप होंदा। ठीक है जी, उहदे बारे भी आपां पढ़ांगे। सो किसने जितया, इतिहास में पहली बार इंडिया ने जितया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, वेरी नोट कर लेना। 32वां एडिशन होया सी, याद रखना। ठीक है जी, हराया किसनूं, 14 बार विनर। ठीक है, सब तो ज़्यादा बार जेतू इंडोनेशिया नूं हराया। किसनूं हराया, इंडोनेशिया नूं हराया। ठीक है जी, होया कित्थे थाईलैंड बैंकॉक में होया। ठीक है जी, सारी गल्लां नोट कर लेना, याद रखो पहली बार जितया। ठीक है जी, पुरुषों का कप होंदा तो इंडिया ने इतिहास में पहली बार जितया, हराया किनू, इंडोनेशिया नूं हराया। ठीक है जी, सारी गल्लां की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 45 देखो, ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जितया? तो देखो जी उपर आप पढ़ के आए थॉमस कप बारे, ठीक है जी। थॉमस कप केवल पुरुषों का कप होंगे तो ऊबर कप केवल महिलाओं का कप होंगे, ठीक है जी। सो ऊबर कप 2022 किसने जितया? साउथ कोरिया ने जितया, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। सारे नोट कर लेना गा किन्नवा एडिशन होया सीगा, 29वां एडिशन होया सीगा। इन्नी ज़्यादा याद रखने की लोड़ है नहीं, ठीक है जी। केवल यही याद रखना गा भी ऊबर कप 2022 किसने जितया? साउथ कोरिया ने जितया, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 46 देखो, इंग्लैंड में हर साल आयोजित होने वाला दुनिया का सब तो पुराना बैडमिंटन टूर्नामेंट किहड़ा है? तो देखो जी दुनिया का सब तो पुराना बैडमिंटन टूर्नामेंट किहड़ा गा? ऑल इंग्लैंड ओपन है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। सारे जाने ने की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 47 देखो, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 मैंस सिंगल का खिताब किसने जितया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है जी। सो ऊपर आप पढ़ के आएंगे दुनिया का सब तो पुराना बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2022 में इसका खिताब किसने जितया? विक्टर एक्सेल्सन ने जितया, ठीक है जी। ये किहड़े देश के खिडारी ने? डेनमार्क के खिडारी ने। किहड़े देश के? डेनमार्क के खिडारी ने, ठीक है जी। 114वां एडिशन होया सीगा, सो कह सकते हो सब तो पुराना टूर्नामेंट है, ठीक है जी। तो हराया किस नूं? लक्ष्य सेन नूं हराया, ठीक है जी। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे सीगे, प्रश्न आ सकता गा दूसरे नंबर पर कौन रहे? इंडिया के लक्ष्य सेन रहे, ठीक है जी। नोट करो। तो वूमन सिंगल का हुण मैंस सिंगल का किसने जितया? विक्टर एक्सेल्सन ने, ठीक है जी। वूमन सिंगल का खिताब किसने जितया? अकाने यामागुची ने। ये किहड़े देश के खिडारी ने? जापान के, ठीक है जी। वूमन सिंगल का खिताब किसने जितया? अकाने यामागुची ने। किहड़े देश के खिडारी ने? जापान के, ठीक है जी। सारी गल्लां की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 48 देखो, सिंगापुर ओपन 2022 वूमन सिंगल का खिताब किसने जितया? तो देखो जी किसने जितया? पीवी सिंधु ने जितया, ठीक है जी। हराया किसनूं? वांग जी ही नूं हराया। पीवी सिंधु के जिन्ने भी 2022 में खिताब बनेगे सारे याद रखने गे, बहुत ज़्यादा चांस नेगे भी इन्हां विचों पेपर में प्रश्न आ सकता, ठीक है जी। वूमन का खिताब किसने जितया? पीवी सिंधु ने। सो मैंस का खिताब किसने जितया? टोनी सिनुका गिंटी ने। किसने? एंटोनी सिनुका गिंटी ने। ये किहड़े देश के खिडारी ने? इंडोनेशिया। किहड़े देश के? इंडोनेशिया के, ठीक है जी। सारी गल्लां की कर लेना गा, नोट कर लेना गा, खास करके याद रखना गा वूमन सिंगल का खिताब किसने जितया? पीवी सिंधु ने, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 49 देखो, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपीयनशिप 2022 का खिताब किसने जितया? तो देखो जी एक खिताब भी किसने जितया? पीवी सिंधु ने ही जितया, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। हराया किसनूं? मालविका बसनुद्र नूं हराया, ठीक है जी। ये भी इंडिया की ही खिडारी है, सो ये भी नोट करना, ठीक है जी। होया कित्थे सीगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में होया, ठीक है जी। ये पीवी सिंधु का दूसरा टाइटल है, ठीक है जी। ये पीवी सिंधु का सैयद मोदी का दूसरा टाइटल है। तो याद रखियो ये केवल वूमन का मुकाबला होया सीगा, मैंस का मुकाबला नहीं होया, ठीक है जी। मैंस सिंगल ये मुकाबला नहीं होया सीगा। सो किसने जितया? पीवी सिंधु ने जितया। ऑप्शन नंबर अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 50 देखो, द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू गेम फॉर्मेट कॉल्ड ट्रिपल? तो पूछ रहा भी किहड़ी स्पोर्ट की गवर्निंग बॉडी ने एक नवी फॉर्मेट लियांदी है खेड विच जिन्होंने की कहा जाता है? ट्रिपल कहा जाता, ठीक है जी। तो देखो होया कि टेनिस में अगे किन्ने खिडारी होंगे सी? ज़्यादा तो ज़्यादा अगे दो खिडारी इधर खेड सकते, ठीक है जी। दो खिडारी इधर खेड सकते थे। इनू की कहा जाता है? डबल कहा जाता है। भावें दोनों लड़के होण, भावें दोनों लड़कियां होण, ठीक है जी। भावें एक लड़का तो एक लड़की भी हो सकती, ठीक है जी। उन्होंने की कहा जाता है? मिक्स डबल कहा जाता है। हुण की कहते पर हुण ट्रिपल भी लिया जाऊगा, मतलब इधर भी 3 होया करनगे ते इधर भी 3 होया करनगे, ठीक है जी। इन्हां विचों एक लड़की होया करूगी ते 2 लड़के होया करनगे, ठीक है जी। इन्हां विचों एक लड़की होया करूगी ते 2 लड़के होया करनगे, ते इहनूं की कहा जाऊगा? ट्रिपल कहा जाऊगा, ठीक है जी। सो की अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाऊगा? ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, टेनिस, ठीक है जी। सो टेनिस की गवर्निंग बॉडी ने की कहा भी हाल की लियावांगे? ट्रिपल लियावांगे, ठीक है जी। आप कित्थे? टेनिस विच। ते एक होर फैसला लिता, की फैसला लिता गा भी हुण जिहड़ा टेनिस हैगा ओह खुले विच होया करूगा, ठीक है जी। अगे खुले विच नहीं हुंदा, ठीक है जी। हुण उहदी छत जिहड़ी होगी खुली होया करू, ओपन विच होया करू, ठीक है जी। ये भी याद रखियो। किने फैसला किने लिया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, ठीक है जी। किसने? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। स्थापना कदों हुई सी? 1934 में हुई सी। इसका हैडक्वार्टर कित्थे हैगा? कोलालंपुर में मलेशिया में, ठीक है जी। ये भी हैडक्वार्टर याद रखी जाओ, स्टैटिक जीके में प्रश्न आ जाता होंदा, ठीक है जी। स्टैटिक जीके भी इत्थे अपनी कवर हो रही हैगी। सो हैडक्वार्टर भी नाल याद रखी जाओ, कित्थे हैगा इहदा? कोलालंपुर मलेशिया में, ठीक है जी। सारी गल्लां की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 51 देखो, इंडिया ओपन 2022 मैंस सिंगल का खिताब किसने जितया? इंपॉर्टेंट प्रश्न आगा, किसने जितया? लक्ष्य सेन ने जितया, ठीक है जी। याद रखियो किसने जितया? लक्ष्य सेन ने। मैंस सिंगल किसने जितया? लक्ष्य सेन ने। सो वूमन सिंगल किसने जितया? बुशनान ओंगबम रंगपन। की है नाम? बुशनान ओंगबम रंगपन, ठीक है जी। याद रखियो, अजीब जहा नाम ही है, केवल बुशनान याद रख लियो, बुशनान ओंगबम रंगपन, ठीक है जी। होया कित्थे सीगा ये? न्यू दिल्ली विच होया सी। होया कित्थे सीगा? न्यू दिल्ली विच होया सी। ते जिहड़ी बुशनान खिडारी है कित्थे दी है? थाईलैंड दी है। कित्थे दी है? थाईलैंड दी, ठीक है जी। सारी गल्लां की कर लेना गा, नोट कर लेना गा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मैंस सिंगल किने जितया? लक्ष्य सेन ने जितया, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 52 देखो, तसनीम मीर भारतीय खिडारी हाल ही में चर्चा में सन, वो किहड़ी खेड नाल संबंधित हैं? तो देखो जी, तसनीम मीर काफ़ी चर्चा में सी हाल में न्यूज़ में, किहड़ी खेड नाल संबंधित हैं? बैडमिंटन नाल संबंधित हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। क्यों चर्चा में सीगे? इंडिया फर्स्ट रैंकिंग इन अंडर 90 गर्ल। तो देखो जी, अंडर 9 गर्ल बैडमिंटन में, ठीक है जी, अंडर 90 गर्ल्स बैडमिंटन में भारत ने पहली बार नंबर 1 की रैंक प्राप्त की है। ठीक है जी, अंडर 90 गर्ल बैडमिंटन में भारत ने पहली बार नंबर 1 की रैंक प्राप्त की है। तो किहने दवाई है नंबर 1 की रैंक? तसनीम मीर ने। ठीक है जी, नाम याद रखना किसने? तसनीम मीर ने। ठीक है जी, अंडर 90 गर्ल्स में। ठीक है जी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जी है रैंकिंग जारी कर दी है। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। तो किहड़े स्टेट तो ने ये याद रखो, तसनीम मीर किहड़े स्टेट तो ने? गुजरात तो। किहड़े स्टेट तो? गुजरात तो ने। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 53 देखो, हु हैज़ वॉन द मैन सिंगल टाइटल एट 2022 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो देखो 2022 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जितया? विक्टर एक्सेल्सन ने जितया। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने जितया। ठीक है जी, किहड़े देश के खिडारी ने? डेनमार्क के खिडारी ने। मैच सिंगल किसने जितया? विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है जी, वूमन सिंगल किसने जितया? चेन जुफाई ने। किसने? चेन जुफाई ने। ठीक है जी, नाम तो ही पता लगता किहड़े देश की खिडारी है? चाइना की खिडारी है। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 54 देखो, एशियन बैडमिंटन चैंपीयनशिप 2022 पीवी सिंधु ने किहड़ा मैडल जितया? हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो जी, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मैडल जितया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो याद रखो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पीवी सिंधु ने पहली बार किहड़ा मैडल जितया? गोल्ड मैडल जितया। ठीक है जी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बारे आप पूरे डिटेल में वीडियो के एंड से पढ़ांगे। ठीक है जी, तो याद रख लो बस इन्ना भी पीवी सिंधु ने पहली बार किहड़ा मैडल जितया? गोल्ड मैडल जितया। कित्थे? कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है जी, तो 2022 बारे आप पूरी डिटेल में वीडियो के एंड से पढ़ांगे। तो इत्थे याद रखो, एशियन बैडमिंटन चैंपीयनशिप पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मैडल जितया। सो गोल्ड किसने जितया? वांग जी ने जितया। ठीक है जी, चैंपीयनशिप होई कित्थे सीगी? फिलीपींस में होई। ठीक है जी, तो मैच सिंगल में गोल्ड किसने जितया? ली जिया जिया। ठीक है जी, किसने? ली जाई जिया। किसने? ली जाई जिया। ये किहड़े देश के खिडारी है? मलेशिया के। किहड़े देश दे? मलेशिया देश के खिडारी ने। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 55 देखो, अमृत दीवान कप हेठ लिखिया विचों किस नाल संबंधित है? तो देखो जी, आप बैडमिंटन बारे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, सो किस नाल संबंधित है? बैडमिंटन नाल ही संबंधित है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। हुण आप देख लेने कुछ इंपॉर्टेंट कप्स बैडमिंटन के। कौनिंग कप। ठीक है जी, थॉमस कप, नारंग कप, ऊबर कप, योनेक्स कप तो चड्डा कप, ये सारे कप किहदे नाल संबंधित नेगे? बैडमिंटन नाल ही संबंधित हैं। ठीक है जी, ये याद करने नेगे, ये पहला पेपर में इन्हां विचों प्रश्न आए होए हैगे, ते बाकी जिन्ने आपां पढ़िया हुण तक। ठीक है जी, वो भी याद करने नेगे, सारिਆਂ विचों प्रश्न आ सकदा है, सारे इंपॉर्टेंट नेगे, इस करके सारे याद कर लेने नेगे। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 56 देखो, मलेशिया ओपन बैडमिंटन कॉम्पीटिशन वूमन सिंगल चैंपियन रचानोक इंटरनॉन कम्स फ्रॉम विच कंट्री। तो पूछ रहा भी मलेशिया ओपन की विजेता। ठीक है जी, मलेशिया ओपन वूमन सिंगल की विजेता रचानोक इंटरनॉन किहड़ी कंट्री तो आ गई? किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करती है? ये थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी, थाईलैंड कंट्री की है। तो याद रखो, तो वूमन सिंगल किसने जितया? रचानोक इंटरनॉन। ठीक है जी, सो मैंस सिंगल किसने जितया है? मलेशिया ओपन का विक्टर एक्सेल्सन ने। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है जी, ये किहड़ी कंट्री तो नेगे? ये डेनमार्क कंट्री तो। किस तो? डेनमार्क कंट्री तो। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 57 देखो, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 मैंस सिंगल का खिताब किसने जितया? तो देखो जी, ये बारे मैं तुहानूं पहला वीडियो में दस चुकिया। ठीक है जी, हुण जिहड़े विद्यार्थी ने दिमाग खोल के वीडियो देखा होना गा, वो तो आंसर दे देंगे। सो इसका आंसर की करो? कमेंट कर दो। ठीक है जी, इसका आंसर की करो? कमेंट करके दस दो। तो सारे विद्यार्थी आंसर की होना चाहिए गा? सही होना चाहिए। ठीक है जी, हुण इत्थे अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया बैडमिंटन का। हुण आपां अगे पढ़ांगे हॉकी बारे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 58 देखो, इंडियन टीम ने हाल ही में किस देश को हरा के वूमनस हॉकी एशिया कप में ब्रॉन्ज मैडल जितया? तो देखो जी, हाल ही में इंडियन टीम ने चाइना को हरा के वूमनस हॉकी एशिया कप में ब्रॉन्ज मैडल जितया। ठीक है जी, गोल्ड किसने जितया? जापान ने जितया। एशिया कप होया कित्थे सीगा? मस्कैट ओमान में होया। ठीक है जी, तो इंडिया के कप्तान कौन सी? ये सविता पूनिया। तो इंडिया जी वूमनस टीम आ गई, इसकी रैंकिंग की है वर्ल्ड में 6 नंबर है। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है जी, तो याद रखो, वूमनस का हॉकी एशिया कप। ठीक है जी, कित्थे होया सीगा? ओमान विखे होया सीगा। सारी गल्लां नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9 देखो, इंडियन मैंस टीम ने हॉकी एशिया कप 2022 में किहड़ा मैडल जितया? तो देखो जी, ऊपर आप पढ़ के आए वूमनस बारे। ठीक है जी, हुणे पूछ रहा मैंस बारे। सो मैंस टीम ने किहड़ा मैडल जितया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, ब्रॉन्ज ही जितया। ठीक है जी, किहड़ा मैडल जितया? ब्रॉन्ज ही जितया। कित्थे होया सी एशिया कप? इंडोनेशिया में होया सीगा। गोल्ड किहने जितया? साउथ कोरिया ने। सिल्वर किहने जितया? मलेशिया ने। ठीक है जी, किन्नवां एडिशन सी? 11वां एडिशन सीगा। ते इंडिया ने कप्तान कौन सीगा? रुपिंदरपाल सिंह। कौन सीगे? रुपिंदरपाल सिंह। ठीक है जी, तो याद रखो, जी इंडियन टीम की रैंकिंग आ गई वर्ल्ड में मैंस की, और 4th नंबर है। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 60 देखो, विच टीम हैज वॉन द 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपीयनशिप। हाँ जी, प्रश्न नंबर 60 देखो, विच टीम हैज वॉन द 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपीयनशिप 2022 हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो जी, हिमाचल प्रदेश में होने वाले 9वें नैशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपीयनशिप टोटल 6 टीमों ने हिस्सा लिया सी। ठीक है जी, कितनी टीमों ने? 6 टीमों ने हिस्सा लिया सीगा। जितया किसने? लद्दाख ने जितया। किसने जितया? लद्दाख ने जितया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 61 देखो, इंडिया विट विच कंट्री टू विन द इनॉग्रल FIH हॉकी 5S चैंपीयनशिप एट लुसाने स्विट्जरलैंड। तो देखो जी, पहली चैंपीयनशिप हुई सी। ठीक है जी, इनॉग्रल मतलब पहली। ठीक है जी, पहली FIH हॉकी 5S चैंपीयनशिप हुई सीगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ FIH ਹੌਕੀ 5S ਚੈਂਪੀਅਨशिਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ जी, प्रश्न नंबर 12 देखो, महिला FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2022 किसने जितया। तो देखो जी, FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन। ठीक है जी, सो इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन कराਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है जी, जिवें अपने क्रिकेट ਵਿੱਚ वर्ल्ड कप ਹੁੰਦਾ मेन, उस तरह हॉकी ਦਾ मेन वर्ल्ड कप है। ठीक है जी, सो किसने जितया? नैदरलैंड जितया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। किन्नवां एडिशन सीगा? 15वां एडिशन सी। ठीक है, याद रखियो। तो ऑर्गेनाइज किहने कीता? इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन ने। कित्थे होया? स्पेन एंड नैदरलैंड विच। ते जितया कौन? नैदरलैंड जितया। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 13 देखो, मैंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कितने होगा। तो देखो जी, ऊपर आप पढ़ के आएंगे वूमेंस बारे। ठीक है जी, हुण मैंस का पूछ लिया गया, वूमेंस का हो हटिया। ठीक है जी, हुण मैंस का हजे होगा 2023 होगा। कितने होगा? उड़ीसा विच होगा। हाल ही विच उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, ठीक है जी, कलिंगा स्टेडियम में कीता गा जिहड़ा 2023 लोग कप होना गा, लोगो अनवील किया। ठीक है जी, इसका की कीता गा? लोगो अनवील किया गा। किन्नवां एडिशन होगा? 15वां एडिशन होगा। तो दुनिया का सब तो बड़ा जो स्टेडियम बन रहा, कितने बन रहा है? उड़ीसा में ही बन रहा। किहड़ा की स्टेडियम का नाम? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम। की है स्टेडियम का नाम? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है जी, कितने बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा। ठीक है जी, सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 14 देखो, 12th हॉकी इंडियन सीनियर मैंस नैशनल चैंपीयनशिप कितने हुई। तो देखो जी, ये की होंगे ये 35 साल तो ज़्यादा उम्र के जो खिलाड़ी ने वो हिस्सा लेंदे होंगे। ठीक है जी, कितने हुई? ये हुई मध्य प्रदेश। ठीक है जी, भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है जी, तो जेतू कौन रहा? हरियाणा रहा। ठीक है जी, हुई कितने? मध्य प्रदेश। ठीक है जी, भोपाल में। जेतू कौन रहा? हरियाणा रहा। सारी गलों की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 65 देखो, रंगा स्वामी कप किस खेड नाल संबंधित है। तो देखो जी, आप हॉकी बारे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, हॉकी नाल संबंधित। ठीक है जी, हम आप देख लेंगे कुछ कप तो ट्रॉफियां हॉकी दियाँ। आगा खान कप हो गया। ठीक है जी, अजियान शाह कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है जी, गुरु नानक कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ठीक है जी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, यूरोप नेशनल कप, खान अब्दुल गफर खान कप। ठीक है जी, ये सारे कप तो ट्रॉफियां किहदे नाल संबंधित ने गया? हॉकी नाल संबंधित हैं। ठीक है जी, इन्होंने नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, हुण आपां पढ़ांगे फुटबॉल बारे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 66 देखो, संतोष ट्रॉफी किस खेड नाल संबंधित है। तो देखो जी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल नाल संबंधित है। ठीक है जी, हुणी 7वां एडिशन होया सी। ठीक है, 2022 किसने जितया? केरला ने जितया। ठीक है जी, संतोष ट्रॉफी का 2022 का एडिशन किसने जितया? केरला ने जितया। ठीक है जी, सब तो वध बार जो जेतू कौन आ? बंगाल आ। सब तो वध बार जेतू कौन आ? बंगाल आ। ठीक है जी, इन्हू ट्रॉफी ने होर की कहा जाता है? हीरो सीनियर मैंस नैशनल फुटबॉल चैंपीयनशिप। की कहा जाता है? हीरो सीनियर मैंस नैशनल फुटबॉल चैंपीयनशिप। ठीक है जी, हीरो अपना स्पॉन्सर हो गया, ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन। किहदे द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? AIFF। ठीक है जी, किहदे द्वारा? ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन द्वारा। ठीक है जी, ये भी सारी गल्लां नूं की कर लेना, तुसीं नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न स्टार्ट देखो, किस टीम ने सैफ अंडर 18 वूमेन फुटबॉल चैंपीयनशिप 2022 जितया। तो देखो जी, सैफ अंडर 18 वूमेन फुटबॉल चैंपीयनशिप 2022 इंडिया ने जितया। ठीक है, किसने? इंडिया ने। यह इंडिया का पहला टाइटल लगा होया कितने सीगा? झारखंड में। ठीक है जी, जमशेदपुर विखे। तो ऑर्गेनाइज कौन करता गा? साउथ एशियन फुटबॉल फैडरेशन। कौन ऑर्गेनाइज करता गा? साउथ एशियन फुटबॉल फैडरेशन। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना। जिवें तुहानूं दस्सिया सीगा भी अंडर 18 अंडर 20 उही पढ़ने जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है जी, सो इंडिया ने जितया गा, इस करके ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहा है। ठीक है जी, इन्हें नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 68 देखो, भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार FIFA नेशनस कप 2022 लिए क्वालीफाई किया। इस कप का विजेता कौन रहा। तो देखो जी, ये FIFA वर्ल्ड कप नहीं है। ठीक है जी, ये FIFA नेशनस कप आगा, भारत ने पहली बार क्वालीफाई किया। ठीक है जी, सो विजेता इसका कौन रहा? ब्राजील रहा। ठीक है जी, याद रखियो, भारत ने पहली बार किहदे लिए क्वालीफाई किया? FIFA नेशनस कप। ये FIFA वर्ल्ड कप नहीं है। ठीक है जी, इसका विजेता कौन रहा? ब्राजील रहा। ठीक है जी, इन्हों नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 69 देखो, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की विजेता किहड़ी टीम रही? तो देखो जी, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की विजेता चीन टीम रही है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। होया कित्थे सीगा? इंडिया विच होया। कित्थे होया सीगा? इंडिया विच होया। ठीक है जी, ये नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 70 देखो, एशिया का सब तो पुराना फुटबॉल कप किहड़ा है? तो देखो जी, एशिया का सब तो पुराना फुटबॉल कप किहड़ा है? दुरंड कप। ठीक है जी, कदों शुरू होया सीगा? 1888 में शुरू होया सीगा। ते एक इंडिया का रीजनल कप आ, इंडिया का रीजनल कप आ। ठीक है जी, मतलब इंडिया के अंदरूनी जो स्टेट ने ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਰੰਡ ਕੱਪ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦੁਰੰਡ ਕੱਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 1888 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਕੱਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। 2022 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 71 देखो, दुरंड कप 2022 की विजेता किहड़ी टीम रही? तो देखो जी, ऊपर आप गल करके हटे हैं, किहड़ी टीम ने जितया? बंगलौर ने जितया। ठीक है जी, बंगलौर का यह पहला कप आ, बंगलौर का यह पहला कप आगा। हराया किसनूं? मुंबई नूं हराया। किसनूं हराया? मुंबई नूं हराया। ठीक है जी, तो एशिया का सब तो पुराना की हैगा? फुटबॉल कप। ठीक है जी, एशिया का यह सब तो पुराना फुटबॉल कप आगा। सारी गल्लां नूं कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 72 देखो, किस क्लब ने 2022 में अपना पहला ISL इंडियन सुपर लीग का खिताब जितया? तो देखो जी, 2022 में इंडियन सुपर लीग का खिताब हैदराबाद FC ने जितया। ठीक है, किसने? हैदराबाद FC ने। किनवा एडिशन होया सी? 18वां एडिशन होया सीगा। इसका स्पॉन्सर कौन सीगा? हीरो मोटोकॉर्प। कौन? हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है जी, तो शुरू कदों होया सी कप? 2013 में। कदों शुरू होया सी इंडियन सुपर लीग? 2013 में शुरू होया। ठीक है जी, तो 2022 का खिताब किसने जितया? हैदराबाद FC ने। सब तो ज़्यादा बार खिताब किसने जितया होया? कलकत्ता ने। किसने? कलकत्ता ने। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 73 देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कित्थे होवेगा? तो देखो जी, ये होना नवंबर तो शुरू। ठीक है जी, नवंबर तो शुरू होने वाला गा, कतर विखे होवेगा। ठीक है, कित्थे होवेगा? कतर विखे होवेगा। हुण 2026 का पुछ लेना भी कित्थे होवेगा? ये होवेगा कैनेडा एंड नॉर्थ अमेरिका। कित्थे होवेगा? कैनेडा एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, 2026 का कित्थे होवेगा? कैनेडा एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, 2022 का कित्थे होवेगा? नवंबर तो शुरू होवेगा कतर विखे। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो, तो याद रखो, इनू कौन कराउंदा हुंदा गा? फीफा की फुल फॉर्म की है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसीएशन फुटबॉल। ठीक है जी, स्थापना कदों हुई सी? 1904 में हुई सी। हैडकुआटर कित्थे फीफा का? स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, हैडकुआटर कित्थे फीफा का? स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, सारी गल्लां नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 74 देखो, फुटबॉल इज रिलेटेड टू विच ट्रॉफी? तो देखो जी, इन्हें पूछता भी इन्होंने विचों किहड़ी ट्रॉफी फुटबॉल नाल संबंधित आ? तो इत्थे राइट ऑप्शन क्या आ जाऊगा? ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। टोड मेमोरियल ट्रॉफी। किहड़ी? टोड मेमोरियल ट्रॉफी। ठीक है जी, हुण आपां देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफियां फुटबॉल दीयां। कोलंबो कप हो गया। ठीक है जी, दुरंड कप हो गया, बीसरा ट्रॉफी होगी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी होगी, मैड्रिड कप हो गया। ठीक है, जिन्होंने एशिया कप भी कहा जाता। एशिया कप होर की कहा जाता? मैड्रिड कप। ठीक है जी, सारी गल्लां की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 75 देखो, 2022 में किसनों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रधान बनाया गया? तो देखो जी, किसनों बनाया गया? कल्याण चौबे। किसनों बनाया गया? कल्याण चौबे बनाया गया। ठीक है जी, तो इसकी स्थापना कदों हुई सी? आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की 1937 में हुई सी। इसका हैडकुआटर कित्थे हैगा? न्यू दिल्ली विखे। ठीक है जी, हैडकुआटर इसका कित्थे हैगा? न्यू दिल्ली विखे। ठीक है जी, ये सारे नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, हुण आपां पढ़ांगे एथलैटिक एंड जिहड़े स्पोर्ट्स के अवार्ड ने उन्हां बारे। ठीक है जी, हाँ जी, प्रश्न नंबर 76 देखो, किहड़ा भारतीय खिडारी 2022 में डायमंड लीग जितने वाले पहले खिडारी बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैगा। पहले खिडारी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। डायमंड लीग होई कित्थे सीगी? स्विट्जरलैंड में होई। ठीक है जी, तो नीरज चोपड़ा की हुण तक जी बेस्ट थ्रो किहड़ी हैगी? 99.94 मीटर की। किहड़ी हैगी? 99.94 मीटर की। कित्थे सिटी सीगी? स्टॉकहोम स्वीडन विच। ये थ्रो कित्थे सिटी सीगी? स्टॉकहोम स्वीडन विच। ठीक है जी, तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है भी ओलंपिक विच गोल्ड जितने वाले नीरज चोपड़ा भारत के पहले एथलीट ने। कौन है? भारत के पहले एथलीट ने। ठीक है जी, सारी गल्लां की गल नोट कर लेना, खास करके नोट करना भी डायमंड लीग जितने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 77 देखो, अगस्त 2022 में भारत के किस एथलीट ने 100 मीटर दौड़ में नवा रिकॉर्ड बनाया? तो देखो जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने बनाया? अम्मीलाल बोरगोहेन ने। ठीक है जी, अम्मीलाल बोरगोहेन ने 10.25 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ को पूरा किया। ठीक है जी, तो भारत के सब तो तेज दौड़ाक बन गए। भारत के सब तो तेज दौड़ाक बने कौन? अम्मीलाल बोरगोहेन। ठीक है जी, कित्थे बनाया? इंटर रेलवे एथलैटिक चैंपीयनशिप 2022। ठीक है जी, कित्थे बनाया रिकॉर्ड? इंटर रेलवे एथलैटिक चैंपीयनशिप 2022 कित्थे हुई सी? रायबरेली उत्तर प्रदेश। कित्थे? रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 78 देखो, विश्व अंडर 19
हाँ जी, प्रश्न नंबर 78 देखो, विश्व अंडर 19 एथलैटिक चैंपीयनशिप ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ? ਰੂਪਲ ਚੌਧਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੰਡਰ 19 ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪਲ ਚੌਧਰੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? 2018 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਡਲ और किने जित्तिया सीगा? हिमा दास ने जित्तिया। ठीक है जी, किसने जित्तिया सीगा? हिमा दास ने जित्तिया सीगा पहली बार। उदो काफ़ी चर्चा विच भी रहे सी। ठीक है जी, सो ये भी याद रख लो, पहली भारती किहड़ी सी? हिमा दास। ते 2 बार जिहड़ी मैच जितने वाली भारती किहड़ी बनी हैगी? रूपल चौधरी बनी है। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं करना नोट कर लेना हैगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 79 देखो, मार्च 2022 ਵਿੱਚ किसी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमन ऑफ द ईयर 2021 ਦਾ अवार्ड जित्तिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जित्तिया? मीराबाई चानू ने। ठीक है जी, याद रखियो मीराबाई चानू ने 2020 ਦੀ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ? 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕੋਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗੇ? मीराबाई ਚਾਨੂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ? ਮਣੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਮਣੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ की कर लेना नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 80 देखो, भगवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर एथलैटिक चैंपीयनशिप 150 मीटर और 100 मीटर आना सीगा, 100 मीटर ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਦਕ ਜਿੱਤਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਮਾਸਟਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਡਾਗਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 3 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 94 ਸਾਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾ 골ਡ ਮੈਡਲ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਮਾਸਟਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ 24ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ? ਟੋਟਲ 3 ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ 골ਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 81 देखो, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यवाहक अध्यक्ष किसनूं नियुक्त किया गया? किसनूं किया गया? ऑप्शन अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, अनिल खन्ना नूं किया गया। ठीक है जी, जी इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन हैगी, इसकी स्थापना कदों हुई सी? 1927 हुई सी। इसका हैडकुआटर कित्थे हैगा? न्यू दिल्ली में। ठीक है जी, ये भी सारी गल्लां नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 82 देखो, विंटर ओलंपिक 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ओलंपिक 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ओलंपिक ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰ ओलंपिक। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰ ओलंपिक ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ओलंपिक ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਸ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕੀਓ ओलंपिक 2020 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਵਿੰਟਰ ओलंपिक ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ओलंपिक ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਸ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਨਾਰਵੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਨਾਰਵੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ? ਬੀजिंग ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਬੀजिंग ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੋਟੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਊਚਰ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੋਟੋ? ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੇ 16 골ਡ 8 ਸਿਲਵਰ ਤੇ 13 ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬॉयकॉट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 83 देखो, 2022 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਕੌਣ ਬਣੇ ਹਨ? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਜਾਂਜਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਹਨ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਥਲੀਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲੇ ਐਥਲੀਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 84 देखो, 2022 पैरा आर्चरी चैंपीयनशिप ਵਿੱਚ सिल्वर मैडल ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੈਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਪੈਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾਗਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾ 올림픽, ਪੈਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਖੇਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪੈਰਾ ਆਰਚਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ,
पूजा जटियान। ठीक है जी, ऑप्शन अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। सारे जणिਆਂ ने की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 85 देखो। हाल ही विच स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 विच स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल किस नूं दिता गया? देखो जी, मेल पुछ रहे किस नूं दिता गया? नीरज चोपड़ा नूं दिता गया। ठीक है, याद रखियो। तो फीमेल किस नूं दिता गया? मीराबाई चानू नूं। ठीक है जी, मेल किस नूं दिता गया? नीरज चोपड़ा नूं। ठीक है जी, फीमेल किस नूं दिता गया? मीराबाई चानू नूं। ठीक है जी, सारे गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 86 देखो। नीरज चोपड़ा ने हाल ही विच कोटाने गेम्स 2022 विच किहड़ा मैडल जित्तिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न हैगा। किहड़ा मैडल जित्तिया? गोल्ड जित्तिया। ठीक है जी, कोटाने गेम्स होईयां कित्थे सीगीयां? ये होईयां सी फिनलैंड विच। कित्थे होईयां सीगीयां? फिनलैंड विच। ठीक है जी, याद रखियो कित्थे होई सी? फिनलैंड विच होईयां सीगीयां। वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप विच, वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप 2022 विच सिल्वर मैडल किहने जित्तिया? नीरज चोपड़ा ने जित्तिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हैगा। दूसरे भारतीय बने गए तो पहले पुरुष व्यक्ति। ठीक है जी, याद रखियो पहले पुरुष व्यक्ति बने गए तो दूसरे भारतीय बने गए जिन्होंने वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप विच कोई मैडल जित्तिया। ठीक है जी, पहले पुरुष व्यक्ति तो दूसरे भारतीय बने गए जिन्होंने वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप विच कोई मैडल जित्तिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट हैगा काफ़ी, इन्हू नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 87 देखो। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका विच किहड़ा देश पहले स्थान पर रहा? सो पहली मैं तुहानूं दसता सी किहड़ा रहा? नॉर्वे रहा। ठीक है जी, ऑप्शन अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। हाँ जी, प्रश्न 88 देखो। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकैडमी कित्थे स्थापित की जाएगी? कित्थे की जाएगी? उत्तर प्रदेश विखे की जाएगी। ठीक है जी, मेन लोकेशन की गल करी कित्थे? लखनऊ। कित्थे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश विखे। ठीक है जी, नोट कर लेना इहनूं। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 99 देखो। विच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप 2023? तो देखो जी, वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप 2023 आ कित्थे होने वाली हैगी? ये बुदापेस्ट हंगरी विखे होने वाली। ठीक है जी, ऑप्शन अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। बुदापेस्ट हंगरी। ठीक है जी, हंगरी विच बुदापेस्ट। जिहड़े 2022 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कित्थे ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? USA ओरीगन में। ठीक है जी, ओरीगन USA विच नोट करो। तो ये नीरज चोपड़ा ने किहड़ा मैडल जित्तिया हैगा? सिल्वर मैडल जित्तिया। ठीक है जी, नीरज चोपड़ा ने ये किहड़ा मैडल जित्तिया हैगा? सिल्वर मैडल जित्तिया। ठीक है जी, सारी गल्लां की करना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 90 देखो। वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप 2022 विच मैडल जितने वाले पहले पुरुष भारतीय किहड़े बने? पहले पुरुष भारतीय पुछ लैण नीरज चोपड़ा। ठीक है जी, दूसरे भारतीय केवल पुछण किहड़े बने? नीरज चोपड़ा। ठीक है जी, क्योंकि पहली महिला बनी सी की सी उहदा नाम अंजू बेबी जॉर्ज। ठीक है जी, इन्होंने 2003 विच मैडल जित्तिया सीगा कित्थे? वर्ल्ड एथलैटिक चैंपीयनशिप विच। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नोट करो। तो नीरज चोपड़ा ने किहड़ा मैडल जित्तिया हैगा? सिल्वर मैडल जित्तिया। किहड़ा जित्तिया हैगा? सिल्वर जित्तिया। ठीक है जी, बाकी याद रखो पाव नूरमी गेम्स 2022 विच भी इन्होंने किहड़ा मैडल जित्तिया हैगा? सिल्वर जित्तिया हैगा। ये कित्थे होईयां सीगीयां? ये भी फिनलैंड विच होईयां सी। कित्थे होईयां सीगीयां? फिनलैंड विच ही होईयां सीगीयां। ते इत्थे इन्होंने अपने नेशनल रिकॉर्ड नूं भी तोड़िया हैगा। इन्होंने अपनी 99.30 मीटर थ्रो नाल अपने नेशनल रिकॉर्ड नूं तोड़िया। ठीक है जी, कित्थे? पावर ओलंपिक गेम्स विच कित्थे होईयां सीगीयां? फिनलैंड विच होईयां सीगीयां। किहड़ा मैडल जित्तिया हैगा? सिल्वर मैडल जित्तिया। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं की कर लेना गा, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, हुण आपां जो भी अपनी बाकी गेम्स रह गई, ठीक है जी, A to Z सारा क्लीयर करांगे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 91 देखो। 2022 विश्व कुश्ती चैंपीयनशिप में 2 पदक जितने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन बनी हैगी? विनेश फोगाट बनी है। ठीक है जी, तो देखो जी, एक पदक तो इन्होंने हुण जित्तिया। ठीक है जी, एक पहला जित्तिया होगा। सो हुण इन्होंने किहड़ा पदक जित्तिया हैगा? हुण इन्होंने जित्तिया ब्रॉन्ज। ठीक है जी, एक दा पदक इन्होंने 2022 में जित्तिया। ठीक है जी, वह किहड़ा हैगा? ब्रॉन्ज आ। एक इन्होंने किसी पहले साल में जित्तिया होगा। टोटल मिला के 2 पदक जितने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। ठीक है जी, एक इन्होंने जित्तिया 2022 में, एक जित्तिया बजरंग पूनिया ने, एक किने? बजरंग पूनिया। ठीक है जी, इन्हें केवल 2 खिडारियों ने ही पदक जित्तिया कित्थे? विश्व कुश्ती चैंपीयनशिप। ठीक है जी, विश्व कुश्ती चैंपीयनशिप 2022 में केवल 2 खिडारियों ने पदक जित्तिया। किने किने? विनेश फोगाट ने ते बजरंग पूनिया। ठीक है जी, बजरंग पूनिया ने किहड़ा पदक जित्तिया? ब्रॉन्ज पदक ही जित्तिया। ठीक है जी, नोट करो। तो बाकी याद देखो जी, चैंपीयनशिप कित्थे होई सीगी? सर्बिया विच होई सी। ठीक है जी, तो जिहड़े विनेश फोगाट है इन्हें कॉमनवैल्थ गेम्स 2022 में भी गोल्ड मैडल जित्तिया सी। किहड़ा मैडल जित्तिया सीगा? गोल्ड जित्तिया सीगा। कॉमनवैल्थ गेम्स बारे आपां डिटेल में वीडियो के एंड ते पढ़ांगे। ठीक है जी, सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। जी, प्रश्न 92 देखो। 2022 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपीयनशिप में गोल्ड मैडल जितने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? हाँ जी, कौन बनी हैगी? अंतिम पंगल बनी है। ठीक है जी, ऑप्शन अपना ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। इंडिया ने टोटल इतने 16 मैडल जित्तिया। ठीक है जी, केवल एक ही गोल्ड जित्तिया हैगा। किने जित्तिया हैगा? अंतिम पंगल ने। ठीक है जी, सारी गल्लां नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 93 देखो। हु हैज वॉन गाइजोंग चेस मास्टर? तो देखो जी, गाइजोंग चेस मास्टर किसने जित्तिया? डी गुकेश ने जित्तिया। ठीक है जी, ऑप्शन और ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। कित्थे होया सी? स्पेन विखे। ठीक है जी, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 94 देखो। भारतीय एथलीट्स ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन ਨਾਲ किसने समझौता किया? किसने किया? लैंस इंडस्ट्री ने। ठीक है जी, ऑप्शन वाला ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो बाकी याद रखो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन जी की स्थापना कदों हुई सी? 1927 में। तो हैडकुआटर कितने? न्यू दिल्ली विखे। ठीक है जी, जे सैकटरी ने मौजूदा कौन ने? राजीव मेहता ने। ठीक है जी, सारी गल्लां नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 95 देखो। ISSF के वर्ल्ड कप होने वाली मैंस स्कीट में भारत लिए पहली बार गोल्ड मैडल किसने जित्तिया? हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ISS मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फैडरेशन, ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨ ਸਕੀਟ ਵਿੱਚ 골ਡ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਹਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 96 देखो, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जितया। तो देखो जी, एक फॉर्मूला 1 रेस होंगी है, ठीक है जी। फॉर्मूला 1 रेस होंगी हैगी, ये टूरनामेंट होंगे उन्होंने ही कहा जाता है, ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता, ठीक है जी। सो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन ने जितया, ठीक है जी। ये नैदरलैंड के किन्ने रेसर ने कि कार चलाते प्रश्न आता होंगे, अक्सर पुछते होंगे भी ग्रैंड प्रिक्स इन्हें जितया, दसो भी कि कार चलाते आगे। सो कि कार के ड्राइवर ने, रेडबुल कार के ड्राइवर ने, ठीक है, याद रखियो। तो आस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जितया, चार्लस लेक्लर्क, ठीक है जी। ये कि कंट्री तो ने, ये मोनाको कंट्री तो, ठीक है जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਰੇਸਰ ਨੇ ਇਹ, ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹ, ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਹਦੇ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਓ, ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਦੇ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 97 देखो, नीरज चोपड़ा वॉन विच मैडल एट पावर नॉर्मी गेम्स 2022। देखो जी, ये मैं तुम्हें पहले दसता सीगा, ਇਹਦਾ आंसर की करो, कमेंट करके दस दो, ठीक है जी। तो सारे विद्यार्थियों का आंसर सही होना चाहिए गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 98 देखो, IBA एथलीट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसनों नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसनों किया गया गा, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है जी। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किहड़ा मैडल जितया सीगा, ब्रॉन्ज मैडल जितया सीगा, ये भी याद रखियो, ठीक है जी। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन, ठीक है जी। स्थापना कदों हुई सी इसकी, 1946 में हुई सी। हैडकुआटर कित्थे हैगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखो कित्थे हैगा, स्विट्जरलैंड में हैगा। सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 99 देखो, हू बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मैडल इन एशियन ट्रैक चैंपीयनशिप। देखो जी, साइकलिंग नाल संबंधित चैंपीयनशिप है, ठीक है जी। साइकलिंग की चैंपीयनशिप आ गई, कितने हुई सी 2022 न्यू दिल्ली में हुई सी, कितने हुई सी, न्यू दिल्ली में हुई सी। किसी ने मैडल जीता सिल्वर, रोनाल्डो सिंह ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आ गया, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 100 देखो, इंडिया वन हाउ मनी मैडल एट ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2022। देखो जी, इंडिया ने सब तो ज़्यादा ISS वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप में सब तो ज़्यादा 33 मैडल जीते, ठीक है जी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। इंडिया पहले नंबर पर रहा 33 मैडल, ठीक है जी। कितने होया सीगा, जर्मनी में होया सीगा। इंडिया ने 13 गोल्ड, 15 सिल्वर ते 5 ब्रॉन्ज मैडल जीते गए, कितने, ISS वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है जी। जूनियर आ, याद रखियो, शूटिंग वर्ल्ड कप, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 101 देखो, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्चड नैशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022। हाँ जी, ये की होंगे भी इंडिया में जो हवा में गेमां होंगे, जी गेमां हवा में खेडी जांदियां वो इंडिया को अगे लैके जान, ठीक है जी। ये किहड़ी मिनिस्ट्री ने किहड़ी मिनिस्ट्री ने नैशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी चालू की हैगी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। किहड़ी मिनिस्ट्री ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, ठीक है जी। ऑप्शन आना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। ये मिनिस्टर कौन ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है जी। ऑप्शन अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो इंडिया को एम की है, इंडिया 2030 तक एयर स्पोर्ट में नंबर 1 बनाना, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ हवा ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 102 ਦੇਖੋ, ਈਸਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੌਰਵ ਚੌਧਰੀ ਵਨ ਵਿਚ ਮੈਡਲ ਐਟ ISS ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2022। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ISS ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 33 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਈਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੌਰਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 103 देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 एडिशन की विजेता किहड़ी यूनीवर्सिटी रही है। देखो जी, उरे आना सीगा खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स, ठीक है जी। खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स 2022 एडिशन की खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम, ठीक है, नोट करो। किहड़ी यूनीवर्सिटी रही हैगी, जैन यूनीवर्सिटी रही है, ठीक है जी। कित्थे हुई सी खेडां, बैंगलोर में हुई सीगियां। दूसरे नंबर पर किहड़ी यूनीवर्सिटी रही हैगी, LPU, ठीक है जी, लवली प्रोफेशनल यूनीवर्सिटी। तीजे नंबर पर किहड़ी यूनीवर्सिटी रही हैगी, पंजाब यूनीवर्सिटी, ठीक है जी। पंजाब यूनीवर्सिटी ने पहला एडिशन जितया, ठीक है जी। पहले एडिशन में पंजाब यूनीवर्सिटी पहले नंबर पर रही थी, ठीक है जी। सारी गल्लां की करना, नोट कर लेना। तो नोट करो, खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स आ, ठीक है जी। यूथ गेम्स नहीं है, खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स आ, ठीक है जी। सारी गल्लां की कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 104 देखो, किहड़ी महिला बॉक्सर ने वूमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपीयनशिप 2022 में गोल्ड मैडल जितया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किहड़ी महिला जितया, निखत दरी ने, ठीक है जी। निखत दरी ने वूमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपीयनशिप 2022 में गोल्ड मैडल जितया, ठीक है जी। किनवा एडिशन होया सीगा, 12वां होया सी, याद रखने की लोड़ है नहीं गी। कित्थे होया सीगा, इस्तानबुल तुर्की विखे, ठीक है जी। किहड़ी कैटेगरी में जितया, 52 कैटेगरी में, ठीक है जी। 52 kg कैटेगरी में किहड़े स्टेट तो बिलोंग करते हैं, तेलंगाना स्टेट तो बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। इंडिया के टोटल किन्ने मैडल है इस इवेंट में, टोटल इंडिया ने 3 मैडल जिते, कित्थे, वूमेंस
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपीयनशिप, ठीक है जी। किन्ने मैडल जिते? 3 मैडल जिते टोटल, ठीक है जी। गोल्ड किसने जिते? निखत जी ने जिते, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की करना नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 105 देखो, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 ਵਿੱਚ ਅਬਨੀ ਲਿਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ? तो देखो जी अबनी लिखारा ने गोल्ड जितया, ठीक है जी। ऑप्शन में अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। इंडिया ने टोटल कितने मैडल जिते? 47 टोटल मैडल जिते, ठीक है जी। 17 गोल्ड, 21 सिल्वर ते 9 ब्रॉन्ज। तो इंडिया किहड़े नंबर ते रही? पहले नंबर ते रही, ठीक है जी। इंडिया पहले नंबर ते रही कित्थे? पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट हैगा, नोट करो। पहले नंबर ते किहड़ी टीम रही हैगी? इंडिया रही है, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की करना नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो जी, प्रश्न नंबर 106 देखो, 44 चैस ओलंपियाड 2022 कित्थे आयोजित होया? देखो जी 44 चैस ओलंपियाड तमिलनाडु चेन्नई विखे होया, ठीक है जी। ऑप्शन वाला डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। तो ओपन में पहले नंबर पर कौन रहा? ओपन मतलब ये मैन भी खेड सकते थे, ये वूमन भी खेड सकते, ठीक है जी। पहले नंबर पर कौन रहा? उज्बेकिस्तान, ठीक है जी। तो वूमन में पहले नंबर पर कौन रहा? यूक्रेन रहा, ठीक है जी। जो इंडिया है वो ओपन में भी तो वूमन में भी तीजे नंबर पर रहा, ठीक है। दोनों में तमिलनाडु चेन्नई विखे होया सी, कित्थे? तमिलनाडु चेन्नई विखे होया, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 107 देखो, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखो जी 75वें कौन हैं? बी प्रणव, ठीक है जी। हुण तां 76वें बन गए, कौन हैं? प्रणव आनंद। 77वें कौन हैं? 76वें कौन हैं? प्रणव आनंद, ठीक है जी। नोट करो। तो पहले कौन सीगे? विश्वनाथन आनंद, पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन सीगे? विश्वनाथन आनंद, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 108 देखो, अजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जितया? इंपॉर्टेंट हैगा, मैक्स वर्स्टैपन ने जितया, ठीक है जी। किहड़े देश तो नेगे? नैदरलैंड देश तो नेगे। तो किहड़ी कार के ड्राइवर नेगे? रैड बुल कार के ड्राइवर ने, ठीक है जी। कार पूछ लेंदे होंदे, नोट करो। रैड बुल कार के ड्राइवर नेगे कार्लोस सेंज। ये किहड़े देश तो नेगे? स्पेन तो नेगे। इन्होंने भी हाल में किहड़ा ग्रैंड प्रिक्स जितया? ब्रिटेन। इन्होंने भी हाल में ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स जितया, ठीक है जी। किहड़े देश तो ने? स्पेन देश तो नेगे। किहड़ी कार चलाउंदे हैगे? फरारी कार चलाउंदे, किहड़ी? फरारी कार चलाउंदे, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की कर लेना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 109 देखो, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जितया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी किसने जितया? मैक्स वर्स्टैपन ने ही जितया। जिवें तुहानूं कहा सीगा भी जे तुहानूं पेपर में प्रश्न आ भी जाता गा तो जे दिमाग में आंसर नहीं आता, ठीक है सही, तो तुक्का किते ला के आओगे? मैक्स वर्स्टैपन से तुक्का लाओ, ठीक है जी। क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रैंड प्रिक्स ने इन्होंने ही जितया, ठीक है जी। ऑप्शन आना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 110 देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सैशन 2023 कित्थे होगा? हाँ जी, ये होगा मुंबई में, कित्थे? मुंबई में होगा, ठीक है जी। इसका हैडक्वार्टर कित्थे हैगा? स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। ये मौजूदा प्रेजिडेंट कौन ने? थॉमस बैच ने, कौन ने? थॉमस बैच ने, ठीक है जी। सारी गल्लों की करना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 111 देखो, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन होस्ट करेगा? हाँ जी, कौन करेगा? आस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है जी। ऑप्शन वाला ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। कौन करूगा? आस्ट्रेलिया करूगा। आस्ट्रेलिया की किहड़ी सिटी विच? विक्टोरिया सिटी विच, ठीक है जी। किहड़ी सिटी विच? विक्टोरिया सिटी विच किहड़ी खेडां होणगियां? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वालियां होणगियां, ठीक है जी। सारी गल्लां नूं की करना, नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 112 देखो, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 ਵਿੱਚ सौरभ चौधरी ने किहड़ा मैडल जितया? सो पहले ही मैं तुहानूं दसता सी किहड़ा जितया? गोल्ड जितया, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 113 देखो, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ? हाँ जी, किन्ने मैडल जिते टोटल इन्होंने 12 मैडल जिते, ठीक है जी। ऑप्शन आना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर ते 5 ब्रॉन्ज, ठीक है जी। इन्हें याद रखने की लोड़ नहीं हैगी, केवल इन्हें याद रखो टोटल किन्ने जिते? 12 जिते। तो केवल याद रख लो भी गोल्ड किन्ने जिते? 3 जिते, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 114 देखो, 2022 एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 17 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੋਲਡ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ? ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ? 17 ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 35ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗੋਲਡ, 5 ਸਿਲਵਰ ਤੇ 11 ਬ੍ਰੌਂਜ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਈਆ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ भी एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप ਵਿੱਚ रवि कुमार दहिया ने किहड़ा मैडल जितया? गोल्ड जितया, ठीक है जी। भारत ने सिर्फ 1 मैडल जितया गोल्ड, किने जितवाया? रवि कुमार दहिया ने, ठीक है जी। सारी गल्लां की गल्लां नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 115 देखो, इंडिया वन हाउ मेनी मैडल एट स्पैनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022? देखो जी, स्पैनिश पैरा बैडमिंटन 2022 ਵਿੱਚ इंडिया ने टोटल 21 मैडल जिते, ठीक है जी। ऑप्शन आना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। 6 गोल्ड, 7 सिल्वर ਤੇ 8 ब्रॉन्ज मैडल, ठीक है जी। सारिਆਂ ने नोट कर लेना गा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਬਾਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ 2022 ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A to Z ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ क्लीयर हैगा। इस वीडियो तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ स्पोर्ट्स का प्रश्न देखने नहीं मिलूगा, बस वीडियो ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखना, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ कॉमनवेल्थ गेम्स बारे, ठीक है जी।
सो कॉमनवेल्थ गेम के जिन्ने भी अपने फैक्ट बनते हैं, जिन्ने भी अपने MCQs बनते हैं, किने किने गोल्ड मैडल जितया, किने किने सिल्वर जितया, आप सारे ये कंप्लीट किए। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट आ, ध्यान देखना सारे ने। तो देखो पहले आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख देंगे। तो देखो होस्ट कितने होया बी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम विखे। ठीक है जी। कंट्री की गल करिए किहड़ी हैगी, इंग्लैंड। ठीक है जी। इंग्लैंड विखे हुई ने। सो मोटो की गल करिए, इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लेंगे पेपर में, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। की है मोटो, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है जी। सर एडिशन की गल करिए 22 में। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है। मास्कोट की गल करिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अक्सर पूछ लेंगे पैरी का बुल। ठीक है जी। एक बुल जो मैं खड़ा या बुल हैगा। ठीक है जी। ये केवल एक 10 साल की बच्ची ने की किया, डिजाइन किया। ठीक है जी। केवल 10 साल की बच्ची ने डिजाइन किया जोड़ा मास्कोट हैगा की हैगा पैरी का बुल। ठीक है जी। ये नोट करियो। जो टोटल आप नेशन की गल करिए, किन्ने नेशनों ने, किन्ने देशों ने हिस्सा लैता, 72 देशों ने लैता। ठीक है जी। जो ओपनिंग सैरेमनी की गल करिए, इंपॉर्टेंट हैगा 28 जुलाई तो शुरू होकर 2022 तो 8 अगस्त तक। ठीक है जी। 28 जुलाई तो शुरू होकर 8 अगस्त तक। ठीक है जी। हुण जे आपां करिए अगे गल करिए इंडियन फ्लैग बैरर की गल करिए, कौन सीगे, PV सिंधु। ठीक है जी। PV सिंधु कौन ने, सब जानते होंगे, बैडमिंटन के खिलाड़ी ने। ठीक है जी। तो बाकी इन्होंने ओलंपिक्स में 2 बारी मैडल जितया। ठीक है जी। एक तो रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मैडल जितया सीगा, ते बाकी जोड़े अपने 2021 के ओलंपिक होए सी उन्होंने इन्होंने की जितया सीगा, ब्रॉन्ज मैडल जितया। ठीक है जी। वूमन सिंगल में ये नोट करियो। तो मनप्रीत सिंह की गल करिए, ये है नेगे मैंस हॉकी टीम के कप्तान ने। ठीक है जी। सो ये दोनों की सीगे फ्लैग बैरर सीगे ओपनिंग सैरेमनी में। जे आप क्लोजिंग सैरेमनी की गल करिए, शरद कमल ये टेबल टेनिस खिलाड़ी ने। ठीक है जी। सो ये क्लोजिंग सैरेमनी में ये सीगे, एक है जी अपने निकित जरीन। ठीक है जी। एक कौन सीगे, निकित जरीन। ठीक है जी। ये बॉक्सर ने। सो ये अपने दोनों की सीगे क्लोजिंग सैरेमनी में फ्लैग बैरियर सीगे। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट ने, नोट कर लो सारी चीज़ां। तो हुण अगे आप देखते हैं मैडल टैली। सो मैडल टैली तुसीं केवल बस आ 4 देश याद रखने है, केवल आ 4 देश याद रखने है। तो इन्हां विच भी की याद रखना, ध्यान नाल सुन लो। जे पूछ ले भी सब तो ज़्यादा गोल्ड मैडल किसी ने जिते, सो आस्ट्रेलिया ने जिते। ठीक है जी। पहले तो इस तरह ही पूछ सकते हैं, पहले स्थान पर कौन रहा, आस्ट्रेलिया रहा। ठीक है जी। तो सब तो वध गोल्ड मैडल किसी देश ने जिते, ये पूछ सकते हैं आस्ट्रेलिया ने जिते। सब तो वध मैडल किसी देश ने जिते, आस्ट्रेलिया ने जिते। ठीक है जी। ये पूछ सकते हैं। सो आस्ट्रेलिया तो तुसीं सारे याद कर लेना, सिल्वर भी तो ब्रॉन्ज भी। तो बाकी इंग्लैंड के तुसीं आ याद नहीं रखने है, केवल कले गोल्ड याद रख सकते हो। सो बाकी चीज़ां याद रखने की लोड़ नहीं हैगी, बस इन्ना ही याद रखना भी इंग्लैंड सैकेंड पोजीशन पर सी, जो कनेडा का वो 3rd पोजीशन पर। ठीक है जी। सो इंडिया का आप टोटली सारा याद रखना गा। इंडिया ने टोटल कितने जिते, गोल्ड मैडल 22 जिते। ठीक है जी। तो 16 जिते की सिल्वर मैडल, तो 23 जिते ब्रॉन्ज मैडल। टोटल कितने जिते, 61 मैडल जिते। ठीक है जी। टोटल इंडिया ने कितने मैडल जिते, 61 मैडल जिते। ठीक है जी। सो इंडिया का सारा याद रखना। ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो। बाकी मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड करवा दूंगा 24 घंटे बाद, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें PDF मिल जू। ठीक है जी। तो अगे आप इंडियन प्लेयर की कुछ परफॉर्मेंस की गल करिए, संकेत सागर ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला मैडल दिवाया। तो देखो प्रश्न इस तरह पूछ सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला मैडल किसने दिवाया। प्रश्न इस तरह आ सकता गा, वो गोल्ड सिल्वर तो ब्रॉन्ज नहीं लिखा होना, केवल इस तरह प्रश्न आ सकता गा भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला मैडल किसने दिवाया। किसने दिवाया, संकेत सागर ने दिवाया। ठीक है जी। इन्होंने दिवाया वेट लिफ्टिंग में 55 kg कैटेगरी में। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट आ, नोट करो। तो बाकी प्रश्न इस तरह आ सकता गा, इंपॉर्टेंट आ नाले भी पहला गोल्ड मैडल किसने दिवाया। पहला गोल्ड मैडल किसने दिवाया, मीराबाई चानू ने। ठीक है जी। किसने दिवाया, मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग में 49 kg कैटेगरी में। ठीक है जी। वेट लिफ्टिंग में 49 kg कैटेगरी में, ये नोट करो। तो बाकी अपने इंपॉर्टेंट आगे एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप में गोल्ड जितने वाले पहले भारतीय बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले भारतीय बने ने जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मैडल जितया। ठीक है जी। इस करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना, ये नोट करो। अगे जो आप गल करिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार लॉन बॉल्स में गोल्ड जितया। लॉन बॉल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जितया, ये भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो सारे जाने नोट कर लेना। ठीक है जी। अगे देखो, हाँ जी, ये आ गया अपना किहड़े खिडारी ने गोल्ड जितया, किहड़े ने सिल्वर जितया ते किहड़े ने ब्रॉन्ज जितया। तो ये बाकी तुसीं सारा भी याद कर सकते हो, पर मेन गोल्ड तो सारे याद कर नहीं करना। ठीक है जी। सो आप इत्थे गोल्ड देख लेना भी गोल्ड किने किने किहड़ी गेम में जिते। ठीक है जी। तो बाकी ये सिल्वर भी ने ते ब्रॉन्ज भी ने, वो PDF मैं तुहानूं प्रोवाइड करवा दूंगा, उत्थों तुसीं याद कर सकते हो। ठीक है जी। हुण आपां गोल्ड देख लैने गे। तो देखो जी PV सिंधु ने गोल्ड जितया बैडमिंटन वूमन सिंगल में। ठीक है जी। आप ऊपर भी गल करके हटे हाँ। तो गोल्ड होर किने जितया, लक्ष्य सेन ने जितया। ठीक है जी। बैडमिंटन मैन सिंगल में। हुण इस तरह तुसीं याद रख सकते हो भी जिहड़े मैंस जिहड़े सिंगल्स होए, भावें वूमन सिंगल्स होवे भावें मैन सिंगल्स होवे बैडमिंटन दे,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 골ਡ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ 4-4 ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂਸ ਸਿੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਕਿਤ ਜੀਨ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੂਮਨ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਫਲਾਈ ਵੇਟ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੂਮਨ ਲਾਈਟ ਫਲਾਈ ਵੇਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ 골ਡ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੂਮਨ ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ 53 कैटेगरी में, ठीक है जी। अगे देखिए गोल्ड रवि कुमार दहिया ने जितया रैसलिंग मैन फ्री स्टाइल 57 कैटेगरी में। इस तरह एक आप गेम्स की कैटेगरी डिवाइड करके अगे तुम कैटेगरी बाद भी डिवाइड करके आप की कर सकते हो, याद कर सकते हो, आसानी हो जाऊगा, ठीक है जी। अगे जो आप गल करिए गोल्ड होर किने जितया नवीन ने जितया रैसलिंग मैन फ्री स्टाइल 76 kg विच। अगे देखिए गोल्ड शरद कमल ने, ठीक है। जब ऊपर पढ़ के हटेंगे ये की कौन सीगे क्लोजिंग सैरेमनी विच भारत के की सीगे फ्लैग बैरर सीगे, ठीक है जी। सो टेबल टेनिस मैन सिंगल विच, ठीक है जी। अगे देखो गोल्ड नीतू गंगास ने जितया बॉक्सिंग मिनी वेट विच, ठीक है जी। अगे देखो गोल्ड अमित पंगल ने जितया बॉक्सिंग फ्लाई वेट विच, ठीक है जी। गोल्ड होर किने जितया बजरंग पूनिया जितया, ठीक है जी, रैसलिंग मैंस फ्री स्टाइल 65 kg विच, ठीक है जी। गोल्ड साक्षी मलिक ने जितया रैसलिंग वूमेंस फ्री स्टाइल 62 kg विच, ठीक है जी। गोल्ड दीपक पूनिया ने जितया रैसलिंग मैंस फ्री स्टाइल 86 kg विच ते गोल्ड मीराबाई चानू, ठीक है जी। सो मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड जितया कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विच, ये इंपॉर्टेंट नोट करियो। वूमेंस 49 kg विच, ठीक है जी, वेट लिफ्टिंग विच। अगे देखो गोल्ड जर्मनी लाउरिंगा ने जितया वेट लिफ्टिंग मैंस 67 kg विच, ठीक है जी। होर गोल्ड जितया अंजिता सियोल ने जितया वेट लिफ्टिंग मैंस 73 kg विच, ठीक है जी। अगे देखो गोल्ड लवली चौबे, पिंकी न्यामोनी, रूपा रानी तिरके लॉन बॉल्स, ये आप कह सकते हैं कि पहली बार जितया, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, पहला लगातार 3 साल साउथ अफ्रीका ने जितया, ठीक है जी। भारत ने पहली बार हिस्टरी क्रिएट करते हुए कि जितया है लॉन बॉल्स विच गोल्ड जितया, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट आ, सारे नोट कर लेना गा। अगे देखो गोल्ड होर के जितया शरद कमल, सत्या गंगेशकरण, हरमीत देसाई, सुनील शेट्टी टेबल टेनिस मैंस टीम, ठीक है जी। सो ये भी भारत ने गोल्ड जितया। अगे देखो गोल्ड सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग मैंस हैवी वेट, ठीक है जी। सो ये भी भारत ने गोल्ड जितया, ठीक है जी। अगे देखो गोल्ड बाबिन पटेल टेबल टेनिस वूमेन सिंगल्स विच, ठीक है जी, ये भी भारत ने गोल्ड जितया। अगे देखो गोल्ड एल्डोस पॉल इंपॉर्टेंट आ, ठीक है जी। भारत ने पहली बार मैंस ट्रिपल जंप विच गोल्ड जितया, भारत ने पहली बार मैंस ट्रिपल जंप विच गोल्ड जितया, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट नोट करो। अगे देखो गोल्ड शरद कमल सीरज कुल्ला टेबल टेनिस मिक्सड टीम, ठीक है। अगे देखो गोल्ड सात्विक सिराज एंड चिराग सेट्टी, ठीक है जी, बैडमिंटन मैंस डबल विच। सो ये सारे अपने गोल्ड वाले आ गए। तो बाकी ये सिल्वर वाले भी दिते हुए, ठीक है जी, ऐड किए हुए, तो ब्रॉन्ज वाले भी, ये तुम बाकी याद कर लो। इंपॉर्टेंट तो अपने आह गोल्ड वाली ने, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट अपने गोल्ड वाले ने। सो बाकी जो भी अपनी इंपॉर्टेंट गल्लां सी मैं उपर लिख दित्तियां वो सारे याद कर लेणगियां। सो अज की वीडियो में इन्ना ही, मिलांगे तुहानूं अगली वीडियो। गुड लक सारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।